यार जल्दी करो, मेरी रेस है यार, 11 बजे चालू करो। तेरे नाम हम इतने वेलकम टू द यार नहीं यार, मैं तो छोड़ तुम्हें। हो जाओ, कर रही हो ना। हाँ चली जाना। Am I doing this deliberately for bloopers? Maybe. रुक जाओ, मैं चालू करती हूँ। नहीं मैं करी हूँ। सॉरी, मेरे बाल मुंह पे आ रहे हैं। 11 बजे 10:45। Shut up. 2, 3. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to the 3 a.m. call, a podcast where two girls from opposite ends of the Indo-Pak border get together to share with you their conversations, their stories, their realities, opinions, their rants, etc., etc., etc. I am Rafia Jafar, and with me is Ashima Jain, and we are your hosts for this podcast. Anyways, the topic we have today is a topic which affects every Desi person, okay? And it affects girls most, okay? And that topic is Rishta culture. So a very important part of our culture, This song came to my mind. Okay. क्योंकि फैमिली ही हमारी सकाफत की फाउंडेशन है, और फैमिली हमारी रिश्ता कल्चर से ही बनती है। हाँ, नो वंडर ऑल आवर कल्चर इज सो टॉक्सिक. आई होप माय पेरेंट्स डोंट वॉच दिस. Anyways, they also know that. Yeah. It is that they know that they don't agree to it in front of us. Exactly. मतलब. Yeah. That's the point. How? Anyways, तो let's start. और Ashima, when do you think Rishta culture starts affecting girls? Because we're going to mostly talk about girls, seeing as we are girls. Anyways, so where do you think it start affecting us? इसका बहुत ही सिंपल आंसर जो मेरे दिमाग में आ रहा है, विच मैंने भी सुना है ये ग्रोइंग अप, और कभी कभी मजाक, मतलब हमेशा मतलब लोग बोलते थे मजाक में ये, बट जैसा कि आप एक ही मजाक को बार बार सुनते रहते हो तो आप वो बोलते हैं ना, आपके जहन में बैठ जाता है. तो ना जब भी कुछ इफ़ यू आर डूइंग समथिंग एज अ किड, और स्पेशली गर्ल्स पे टारगेटेड होता है ये, जैसे मैंने भी सुना है कि ना दूसरे घर जाएगी तो सास क्या बोलेगी, माँ कुछ सिखा के नहीं भेजी क्या. तो मतलब कि ग्रोइंग अप आपको पता है तो ये जा रहा है ना कि यू हैव टू गो एंड लिव इन समबडी एल्सेज हाउस, और वहाँ पे जाके आपको एक तरीके के कुछ पता नहीं रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी फॉलो करने होंगे, जो दैट कि हाँ की सास क्या बोलेगी कि माँ ने कुछ ऐसे सिखा के नहीं भेजा क्या. तो दैट इज वेयर आई थिंक द रिश्ता कल्चर स्टार्ट फॉर गर्ल्स एज यंग एज आई डोंट नो 12-15. सबको ऐसे मजाक में आई डोंट नो, जैसे हो सकता है किसी को जेन्युइनली भी बोला जाता हो, बट लेकिन मजाक में भी बहुत टू बी ऑनेस्ट हमारे यहाँ जो है मजाक भी जो किया जाता है ना, सिंस वी डोंट स्पीक अबाउट थिंग्स, हमारे यहाँ मजाक के अंदर भी ना इट इज स्टेमिंग फ्रॉम अ प्लेस ऑफ ट्रूथ. You know, it's not just something which is said so frequently to girls, ठीक है, that every Desi girl, वो हम अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, we come from such diverse backgrounds, we have all heard it, right, in some way or the other, okay. Also I don't think this is just humor. This is I think this is a very well settled belief that we are born and now we have to be, you know, prepared to be to be marketable in the desirable and marketable in the rishta market. ये भी बोल रहे थे कुछ सिखा के नहीं भेजा. ऑल्सो जैसे I have been through fat shaming. I have been through fat shaming. तो मुझे तो ये भी बोला जाता है कि ना मोटी शादी कौन करेगा.
like oh god, that blunt. मैंने कहा चलो ठीक है बड़े इस बहाने शादी भी नहीं होएगी मोटर का कुछ तो फायदा हुआ कि शादी भी नहीं होएगी. Thank you for the motivation. More motivation to not चलो exercise. थोड़ा और मोटी हो और तुम भी मोटी हो जाओ. I am not going to lie. When I was like in my teenage years, and I was so afraid of having to go through this system, और मेरे यहाँ तो इतना खतरनाक किस्म का होता है वो, that I genuinely considered that maybe I should deliberately get fatter so that Shit. I can just be on the side. मतलब this is the level of fear I had. And this is the level of this is how much I wanted to protect myself from it, because I think कि कहीं ना कहीं आपको पता होता है कि रिश्ता कल्चर में आपकी जो मतलब I didn't know these words when I was younger, but I knew that there was no me there. Even if I was being made presentable, and if I was being told things like कि तुम काम करो, तुम्हें जाना है ससुराल या something like that, हमेशा So एक it चीज I think we were always being prepared for this one moment Yeah. in our because Yeah. लड़कियों की लाइफ में कोई defining Yeah. moment देखा जाता है ना. This reminds me, this actually reminds me, अभी ना मैं वो देख रही थी Bridgerton, I told you about. So the protagonist, she starts this series by saying this कि ना this is what I've been preparing for my whole life, getting Yeah. married. कि मतलब मुझे बचपन से सिखाया ही गया है that okay that is a different century altogether, it is not as bad now obviously, I but think I'm just trying to make a point. no. That is a different century in England, in the Yeah. subcontinent, at least in terms of rishta culture. We are still living in that century. Bridgerton को देख के मुझे लगता है कि ये पुरानी चीजें थी. ये इस सेंचुरी की बातें नहीं है. I mean when I see around myself, so it is not as bad as Bridgerton. Thank God. But still, I think we are जो suffering तुमने from- बातें की हुई हैं around you also, it's as bad as Bridgerton. It's just that it doesn't affect you directly because of the protection you have. So I think That's around true. you also, it's just that you have a protective shield. Yeah. Okay, Yeah. because तुम्हारी story से I know that near you, it is very similar. Yeah, that may be, yeah. But हाँ, if you look at the bigger picture, that हाँ कि काफी लड़कियों के लाइफ में डिफाइनिंग मोमेंट बताया जाता है. चलो एक्चुअली इसके भी दो, चलो खैर दैट इज अ डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर, लेट्स नॉट गो इनटू दैट. हाँ, तो what है. I was talking about was कि even as a kid, when you don't know these words, you don't even know that there is a different way to live, even then it makes you uncomfortable because it is very dehumanizing और बहुत ही आपकी objectification हो रही होती है. Even though you don't know the word objectification, you know that there is no space for you or your personality. You are just some object, और उसको एक सर्टन तरीके से प्रेजेंट करना है. उसकी फिजिकलिटी सर्टन तरीके की होनी चाहिए, उसकी रेप्यूटेशन सर्टन तरीके की होनी चाहिए. तो फिजिकलिटी में आई थिंक यू आर सपोज टू वेयर सर्टन क्लोथ्स वेयर यू गो आउट, Dress a मतलब certain गो way. आउट या स्पेशली व्हेन यू आर मीटिंग अंकल्स एंड आंटीज, एंड इट हैज़ टू बी अ वेरी thin line that you walk. For example, I used to wear hijab. So I know that if you look over religious and you wear a hijab, तब भी लोग uncomfortable होते हैं. And I come from Islamic country. हमारे यहाँ भी लोग hijab पे uncomfortable होते हैं. ठीक है? Okay. Doesn't So that yes, there defeat is the a whole whole point? section. This is so ironical. Yeah, because I mean there's a whole section of society, and it's like becoming bigger now, जिसमें मतलब people are just properly religious. तो हर कोई निकाब या हर कोई वो कर रहा होगा. Everybody will be a दाढ़ी वाला. But मतलब obviously that section mingles with the rest of the section. तो जो वो there is a certain part of society, there are certain aunties who will tell you, and they did tell me कि why I wear a hijab when I can, I just look better without it. या one of the aunties told my mother कि इसके सर पे ये क्या डाल दिया है. And my mother said कि भाई हमने नहीं डाला, इसकी खुद की मर्जी है, right? And I did do it of my own accord. लेकिन इनकी जो ये सारी बातें होती हैं, okay,
it's not just because of the hijab. It is very, matlab, if you spend time in that environment, you know it's because girls are supposed to present themselves a certain way. Because अगर वो मुआशरे में ऐसे नहीं उठे बैठेंगी where they are like walking some kind of thin line where you're not too religious and you're also not too immoral, you know, quote unquote. See, if when your clothes make you seem beautiful, but they don't, you know, you don't show a lot of skin or something like that, where you walk this nice thin nice line of a good girl who can be sexualized to a certain extent but not so much कि वो characterless लगे, ठीक है ना, but to a certain extent कि भाई हाँ, तो मतलब हिजाब ना हो तो थोड़ी खूबसूरत लगे. हाँ, it's like walking that line which keeps them, like which makes them feel comfortable and which stops them from feeling uncomfortable. You have to take care of both the things. हाँ, and so that also आप ठीक से market हो सके ना, मतलब if I'm wearing a hijab, I won't look my best self ना, and I might come across as too uptight or too, मतलब मेरी कोई personality तो वैसे भी नहीं देख रहा होता. शादी तो हुई तस्वीरों के basis पे जाती है, तो nobody has the time to get to know me or the me behind the hijab or the me behind my shorter clothes, whatever. ठीक है, तो प्रेजेंटेशन सामने से फिजिकलिटी परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो बाल हो, चाहे वो यू नो कपड़ों में कितनी स्किन शो करनी है और कितनी नहीं शो करनी. दैट शुड बी परफेक्ट बिकॉज यू नो आफ्टर ऑल इफ यू फेल एट getting a good match which the society just looks at, जैसे कि वो ड्यूक your का parents are at fault then. Your parents are also at fault because आपकी इज्जत is connected to your parents इज्जत, no, and that is why parents भी इतना वो करते रहते हैं ना, आपको pressurize करते रहते हैं फिर इसीलिए, because both of these things are so interconnected with each other. It's a cycle, you can't go out of it, it's a loop. Parents आपके पीछे पड़े रहते हैं, parents के पीछे आपकी society पड़ी रहती है, तो you keep going on and on, on and on, on and on. Yeah, and you have this very entrenched desi bacha need and I think basic human need of getting the approval of your parents, because and of course in desi cultures, yeah, other Asian cultures, it's more because you grow up thinking कि भाई the obedience to parents is like everything. Yeah, I think this is not a desi thing, that's a very Asian thing. It's also, yeah, it's a Asian thing, that's true. It is Asian thing. वही मैंने कहा कि Asian भी है. तो yeah, तो because of that pressure kind of आप खुद भी, I think you kind of internalize it also, because you are told that this is what good people do, yeah, good girls do, and nobody wants to be, I mean, yeah, okay, some people want to be bad girls और वो एक rebellion के उसमें होता है. But a lot of people. What is this idea of bad girl? I don't think we can tag it exactly. like a bad girl. There's nothing as bad girl. No, I think somebody. So when I said some girls want to be bad girls, I meant कि वो जो एक phase होता है ना, where you're deliberately rebellious to you know to kind of get out of it, where the rebellion isn't because you are that from inside or you're not doing it to an end. It's the rebellion for sake of rebellion. So for that I meant कि हाँ, some people also react to these restrictions and this whole culture this way, but there are a lot of people who like at the end of the day when you grow up in this culture and you don't have a lot of exposure, ठीक है, you feel like when your family, very immediate family is involved in it and supporting it, you feel like it takes a lot to kind of break it or break out of it, because you feel कि अगर ये support structure जो मेरी basic family है मेरे पास नहीं है, if I break out of it, what if my very close circle isn't there with me also, like what is beyond there, beyond the family, how do I survive without it? Okay, you don't necessarily have to survive without it, but when you want to break through something as entrenched as rishta culture is, you think about a lot of risks that you might be taking, you know, कि भाई ओ पेरेंट्स की इज्जत सुन, यू योर होल, और आपको ये चीज़ें बोली भी जाती हैं एक्टिवली कि ओ इफ़ यू डू दिस, ओके, या आपको कहीं से मैसेजिंग मिली होती है कि इफ़ यू डू दिस और इफ़ यू डोंट अबाइड बाय दिस कल्चर where you suddenly start, you know, partaking in your own objectification. If you resist it, तो oh my God, this पूरी family की इज्जत और पूरी खानदान की इज्जत ना is on your shoulders. And to be able to like get out of this, there's a very bad internal conflict that
is within you, where you don't want to be selfish and you don't want to, you know, put your parents in that position, but at the same time there is this very genuine internal human need to not dehumanize and objectify yourself. True, तो true. आई थिंक दैट I think that tussle what बहुत you- सी जिंदगी इस स्ट्रगल में निकलती है. लाइक आई फील लाइक अ गुड चंक ऑफ माई अर्ली 20s and late teens has gone by in, you know, struggling with this, in this internal conflict. What were you saying? Sorry. आई थिंक वही दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि ना ओबेइंग योर पेरेंट्स. तो अगर आप में वो अर्ज आती भी है ना कि कुछ बोल दो, half the times you can't speak it because you know like okay you have your like parents watching you over कि लोग क्या कहेंगे. because I have like मैं काफ़ी shit बोल देती हूँ, ठीक है, I have this मैं shit बोल देती हूँ. I don't hold myself back, but मुझे पता है कि I'm capable of giving out more shit, जो मैं कई बार आई होल्ड माई सेल्फ बैक बिकॉज फिर क्योंकि लोग यही बोलते हैं कि अच्छा मम्मी पापा ने कुछ नहीं सिखाया. और इसमें भी कभी ये नहीं बोलता कि मम्मी पापा ने नहीं सिखाया. पापा काम तो कभी कभी आता है लेकिन मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया. Oh yes. कभी कोई ये नहीं बोलता कि मम्मी पापा ने या पापा ने नहीं सिखाया था. हमेशा ये बोलते हैं कि मम्मी ने कुछ नहीं सिखाया क्या. एज बिकॉज ऑब्वियसली मदर्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं बच्चा बड़ा करने के लिए, ऑब्वियसली लड़कियां तो स्पेशली. तो आई कांट देयर हैव बीन टाइम्स और मेरे मुंह पे होता है एकदम बढ़िया जवाब और लेकिन मैं बोल नहीं पाती है. बोल रही है कि ना मम्मी पापा से डांट पिटेंगे और अगर मम्मी पापा डांटेंगे भी नहीं. कभी कभी तो होता है कि नहीं डांटते बट लेकिन देयर इज अ थिंग लाइक अच्छा लाइक यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पेरेंट्स. मतलब आपकी आइडेंटिटी तो आपकी पर्सनालिटी का एक एस्पेक्ट तो हमेशा यही होता है, एक एक्स्ट्रा एस्पेक्ट होता है आपकी पर्सनालिटी का, दैट यू आर रिप्रेजेंटिंग योर पेरेंट्स. दैट इज वन पर्सनालिटी यू हैव. आई थिंक उसको पील करो ना तो उसको पील करने के बाद आपकी रियल पर्सनालिटी आइडेंटिटीज निकलती है. आई थिंक वो एक में जो होता है ना कि दुनिया को दिखाने वाली पर्सनालिटी तो वही होती है मेरे ख्याल से. I mean, there are a lot of people. And I experienced this. Like this is something तुमने बहुत ही on point बोला है. I experienced this when I stayed away from home and I realized कि oh अच्छा अंदर तो ये है. Like and I mean I was when I started living away from home masters के लिए तो I was old enough कि मुझे कहीं ना कहीं पता चल चुका था कि मेरी personality क्या है. But I think there was a lack of acceptance because it clashed with my parents' personality or values a lot. Exactly. And when I lived away, I guess थोड़ा सा वो space मिलने की वजह से and the fact that I didn't have to interact with the society so much and I was away, तो I kind of had the courage to accept कि अच्छा ठीक है ये मेरी सिर्फ rebellion नहीं है या ये मेरी सिर्फ बकवास नहीं है जो दिमाग में चलती है. Like this is my personality and I need to accept it. कि भाई जो भी मेरे जब वो स्पेस मिलता है ना बिकॉज आप उसी जगह जैसे यू कीप लिविंग देयर अपने मम्मी पापा के आसपास और आपके मम्मी पापा का एक सोशल सर्कल होता है जो इवेंचुअली आपका भी सोशल सर्कल बन ही जाता है. नॉट लाइक सोशल सर्कल बट यू हैव टू पार्टेक इन द एक्टिविटीज. यू कांट लाइक गेट you can't run away from these activities. You have to take. तो आपकी ना वो सोच तो नहीं कहूँगी कि अपनी सोच वैसी हो जाती है बट यू आर कॉन्स्टेंटली सराउंडेड बाय दोस्त ना तो आप ऑब्जेक्टिवली सोच नहीं पाते. तो एज यू सेड ना I think you don't have the space because तो especially a girl जो वो इज्जत वाला होता है. तो you can like put yourself away from these things like these imposed norms and खुद को discover yourself that what kind of person you actually are. और It is very freeing. And also I think एक जब आप छोटे होते हो छोटे से मतलब ये नहीं कि बच्चे होते हो like when you are like जैसे मैं अपना personally बताऊँ तो I went out to study after my 12th standard. ठीक है तो मैं पहली बार गई थी तो like you are freshly out of home. ठीक है तो I was like कितने साल की होंगी मैं 18 I was 18. ठीक है तो 18 पे जब मैं घर के बाहर रह रही थी और अब जब मैं 25 में घर के बाहर रह रही हूँ तो इट इज़ वेरी डिफरेंट. इट्स वेरी डिफरेंट दैट हाउ आई एम मेकिंग यूज ऑफ दिस स्पेस. तो आई थिंक दिस ऑल्सो प्लेज अ वेरी इम्पोर्टेंट रोल. मैं कुछ बोल रही थी लेकिन मैं भूल गई. मैंने पॉइंट क्यों बोली थी 18 और 25 में क्या फ़र्क था पता नहीं. मैं भूल गई. शिट आई लॉस्ट द ट्रेन ऑफ माई थॉट. It's fine. चलो तुम बोलो फिर बाद में. If it comes back to you, we will come back to it. हाँ, but what I was saying was कि भाई जब वो constantly यहाँ पर ना आपके पास space ही इतनी नहीं होती. Like
because you put on yourself this pressure of इज्जत या whatever, क्योंकि वो आप पे डाला भी जाता है और आप उसे because that is your whole world growing up, you accept that, and that pressure you put on yourself, you're so constantly busy policing yourself within this culture where you have to look a certain way and where you have to be a certain way, and you're एक तो हम social भी बहुत होते हैं देसीज, right? It's not, we're not very individualistic, we live a very communal life, so you're constantly exposed to this community where you're constantly objectified, ठीक है? And you know, it's not like बहुत ही early age से शुरू हो जाता है, even when you are not, even when you're a kid you start listening to things like oh इसके जहेज के लिए जमा कर रहे हो, something like that, and the right? words which are or some used. auntie will say this, या कि ओ इसकी शादी हो जाए, ये चीज़ रख लो, इसकी शादी हो जाए तो वो कर देना. तो as a kid when you अपने आसपास यही देखते हो कि इसी चीज से प्रिपरेशन हो रही है, आपकी लाइफ में सबसे बड़ा एम ही यही है. आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट दैट थिंग कि ना अगर आपकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स होते हैं ना उनको भी अंडरमाइन कर देते हैं दीज देसी आंटीज स्पेशली. जैसे तुमको बता रही थी ना एक अवार्ड लाइक दैट, आई फॉरगॉट व्हाट यू वर टेलिंग मी अबाउट दैट अवार्ड सेरेमनी वेयर yes, फाइन गर्ल्स, मतलब oh my god, so my community, yeah exactly, so my community has this academic function, okay, जिसके अंदर every year they have it, जिसके अंदर you get an award, you get a shield if you have completed an educational milestone. So 10th or 11th standard compared whichever board you go through, 10th or 11th standard, O level या metric उस पे, then 2 साल उसके और जो होते हैं A level या inter उसका उस पे, और फिर you know bachelor's, master's, if somebody has a PhD, somebody has, so whatever milestone you have you go register yourself, and वो सेरेमनी होती है बहुत बड़ी कम्युनिटी की, और उस पे जो ना आपको अवार्ड मिलता है, और व्हेन यू लाइक जो हर हाईएस्ट कैटेगरी में होता है तो उसको गोल्ड मेडल भी मिलता है, तो इट्स अ बिग थिंग, ओके. और उस फंक्शन पे जहाँ आपकी एकेडमिक अचीवमेंट्स वो हो रही होती हैं, सेलिब्रेट हो रही होती हैं, और वहाँ जहाँ अनाउंस किया जाता है, वैसे माई कम्युनिटी इज़ प्रिटी पेट्रियार्कल एंड मिसोजिनिस्ट, लेकिन वो ये ज़रूर अनाउंस कर देते हैं कि हमारे यहाँ लड़कियाँ जो हैं ज़्यादा हैं नंबर्स में जिनके अवार्ड हैं, और फिर वो जो ज़्यादा नंबर में लड़कियाँ हैं जिनके एकेडमिक अवार्ड ज़्यादा हैं, उनके साथ उसी सेरेमनी में ये होता है कि सारी आंटियाँ बैठ के अपने रिश्ते के लिए लड़कियाँ ढूंढने आई हुई होती हैं. And when you go on stage, there's half this section who is looking at you, objectifying you with the purpose of seeing whether they think you are suitable for their son. And I'm sure कुछ होती होंगी जो अपने बेटों को भी दिखा देती होंगी कि बेटा अच्छा ये लड़की है, तुम यहाँ देख लो. इट इज सच एन इम्पोर्टेंट अचीवमेंट किसी की लाइफ में कि आप अकेडमिकली, मतलब इम्पोर्टेंट हो सकता है किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, किसी के लिए नहीं हो, बट लेकिन इट इज स्टिल something but so it is a milestone, it is such a separate thing. हाँ, तो आपने उसका, लेकिन आपने उसको घुमा फिमा के you brought it down to marriage. मतलब को बंदी जो भी बेचारी है मेडल रिसीव कर रही है, स्टेज पे जा रही है फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, लेकिन अच्छा ये अच्छी बहू बन सकती है, ये अच्छी बहू, और अच्छी बहू भी क्यों, अच्छी बहू भी क्यों, ताकि उसको शो पीस में रख सके कि अरे देखो हमारी बेटी तो, हमारी बहू तो इतनी पढ़ी लिखी है, जॉब तो फिर भी नहीं करने देंगे हम लोग, नहीं घर के काम कौन करेगा, वो सब तो फिर भी नहीं करने देंगे, बट देखो लेकिन कितनी पढ़ी लिखी है. और मजे की बात यह है कि उस फंक्शन की एक बुकलेट निकलती है, उस बुकलेट में हर उस ईयर के अचीवर का नाम होता है. So when you go on stage and somebody likes you, that is hilarious. When you go on stage shit man, when you go on stage and somebody likes you, your achievement is not remembered in the sense of oh wow this is what this girl achieved or this is what these people achieved. It is remembered in the sense of अरे वो उसका इस कैटेगरी में था, वो देखो, ताकि they can identify you कि अच्छा इस सेक्शन में इसका नाम ढूंढना है, उधर आपके जो है लास्ट नेम लिखा हुआ होगा, तो उससे आप आइडेंटिफाई हो सकोगे. एंड देन बिकॉज द कम्युनिटी इज काइंड ऑफ इंटरकनेक्टेड, तो कोई ना कोई जो है दूर दराज का कोई दोस्त, कोई फैमिली फ्रेंड, कोई रिश्तेदार मिल जाएगा विच इज़ अ लिंक टू यू. सो योर अचीवमेंट इज रिमेंबर्ड एज फॉर एन आइडेंटिफिकेशन पर्पस. अगर आप उस दिन अच्छी लग रही थी और उन आंटी को पसंद आ गई तो, और जो स्टेज पे जा रही होती है, अगर आप क्राउड में बैठे हुए, तुमने इसमें आंटी को पसंद आ गए तो एक तो कितनी सारी लेयर्स है जो क्रॉस करनी पड़ती है. नहीं आंटी नहीं शादी आंटी से नहीं करनी, शादी तो लड़के से करनी है, लेकिन लड़के को पसंद है वो इम्पोर्टेंट थोड़ा है, आपको लड़का पसंद है इम्पोर्टेंट थोड़ा है.
लड़के की मम्मी को आप पसंद आनी चाहिए हो. Of course, because unfortunately, the community I live in, like 90% of the boys, let's do 95% of the boys have no idea who they want to marry. They will just marry the picture and they there is- like. One of the pictures their mothers present, जो उनको पसंद हो. That's Yeah. it. They I don't think marry we a should talk woman, they about marry a this. picture. You should talk about this, that these aunties are scouting for girls on behalf of their sons and how messed up it is. And then I would like to talk about the other aspect also, that why it is so pressurizing for boys. So you talk about why is it pressurizing for girls first, like these auntie uncles doing it for their kids. यार आंटीज ज़्यादा करती हैं एंड इट्स लाइक बिकॉज आंटीज आर एवरीवेयर एवरी शादी यू गो टू every place you interact these aunties, ठीक है ना? I swear I have not been as uncomfortable. I mean, I don't know if it's a horrible comparison, but of course one of the places women are most uncomfortable is when men are, you know, staring at you in a certain way. So when you go out in the market and there are men staring at you, to be honest, मुझे कराची में किसी मार्केट में कभी इतना uncomfortable feel नहीं हुआ, लेकिन मुझे हर शादी में इतना अनकम्फर्टेबल फील हुआ है बिकॉज ऑल दीज आंटीज़, वो आप सलाम करो आशिमा, सलाम, कोई आपको सलाम कराए, दे विल गिव यू यू नो They're not what even do you like call it, a discreet once about over. it. They're not even discreet about They're it. not खुला discreet एकदम. about it. हाँ, आपको पूरा ऊपर नीचे दिखता है एंड दैट गेज, एंड आई विल कॉल इट मेल गेज, ठीक है, इवन दो इट्स आंटीज बिकॉज इट्स अ वेरी पेट्रियार्कल गेज, इट्स अ वेरी देख तो अपने लड़के के लिए भी है ना, देख तो अपने लड़के हाँ, के लिए हाँ. हाथ पे रही है, तो इट इज इनडायरेक्टली मेल गेज ओनली. Yeah, so because it's so patriarchal and so objectifying and it's so dehumanizing that while you are saying salam instead of, या अगर वो एक सेकंड को वालेकुम सलाम कह के आई कांटेक्ट ब्रेक करके यू विल बी सीन ऊपर से नीचे, आप सामने खड़े हुए होगे, आपके बराबर में से कोई, अच्छा ये डायरेक्ट वाली भी अजीब होती है कि बेटा आप कौन हो, अगर आपको नहीं पता कि मैं कौन हूँ तो आप डायरेक्टली आके रैंडमली क्यों बोल रही हैं, मतलब इट्स, आई मीन आई वुड अंडरस्टैंड if somebody is trying to get to know you and network with you, but it's never that. This It's is not just कि networking. आपका This is not appearance, yeah, आपका networking. appearance पसंद आ गया उनको, ठीक है, and if not that, तो what they will do is somewhere sitting, जैसे मैंने एक आंटी को सलाम किया, ठीक है ना, और उनके बराबर में कोई दूसरी आंटी बैठी है जिनको मैं नहीं जानती, ओके, और उन आंटी को, if that aunty likes what she sees, because it is literally that. If you are desirable Okay. enough, if you have done a good job being Yeah. desirable enough. Yeah. तो वो आपके सामने आपको देखे बगैर डायरेक्ट आंटी से पूछेंगे ये कौन है, और फिर दे विल हैव अ कॉन्वर्जेशन अबाउट यू while you are standing in front of them. That is how dehumanizing it is. Okay. So I have more stories, but okay, I'll tell you one more. So about this objectification. ये तो वो तो बहुत hilarious है. My God, that auntie man. I know. God, the shit I lived through, you would think कि किसी ने स्क्रिप्ट की है, but नहीं, ठीक है? Okay. So yeah, weddings I get, every girl gets objectified in weddings like टोकरा भर भर के. Okay, there is no limit to the way, and this is me. This is me who goes to segregated wedding functions most of the time, and I have never gotten. I've never felt objectified by men in weddings. I have always felt objectified by aunties in weddings. I swear to God. Yeah. I think तुम लोग को एक और segregation लगा देना चाहिए. एक तो आदमी, औरतें, और औरतें में भी एक बच्चे और एक आंटियाँ. So at least I swear it would be less creepy and more I know. healthy if you would just I let know. the young people, girls and boys mingle. और It आंटी would को be अपने आप healthier में and करने दो less सब creepy. कुछ. I have faith that the boys are, I mean personality less as I feel they are. With Abba ka business as an excuse for a personality. ठीक है? I'm sorry. Like, this we are is not my here to opinion of generalize, most boys. Rafia. No, we are not putting across the I'm wrong talking message. about those around. I'm not talking about all men. Hashtag not all men. I'm talking Not about all men. a certain community and उसमें भी obviously there are different kind of people, लेकिन उसका एक general standard जो है मैं उसकी बात कर रही हूँ. अब इस community ने मुझे इतना objectify कर दिया, और जिन लोगों ने objectify किया उनके बारे में एक general statement तो मारने दो ना यार, according to my experience. ठीक है? So this auntie, she comes up to me
इन अ सर्टन अच्छा पहले मैं हिजाब करती थी तो व्हेन आई वुड गो टू वेडिंग्स मेरे हिजाब होता था सर पे, लेकिन अगर वो प्रॉपर सेग्रीगेटेड फंक्शन होता था ना जिसमें टेंट लगा हुआ होता था अगर प्रॉपर सेग्रीगेटेड फंक्शन होता था बिटवीन मेन एंड वुमेन एज इन वो बीच में कनात लगी होती थी सो यू कुडंट सी, तो अगर वो वैसा फंक्शन होता था तो आई वुड टेक ऑफ माई हिजाब, ठीक है, सो आई वुड मेक माई हेयर, और उसमें ये होता था कि बहुत कम ऐसे फंक्शंस होते हैं, तो व्हाट आई वुड डू इसके अगर कोई ऐसा फंक्शन होता था तो मुझे ऐसे बाल बनाने का और बड़ा शौक है, आई सी लॉट ऑफ यूट्यूब ट्यूटोरियल, सो आई वुड गेट ड्रेस्ड वेरी नाइसली बिकॉज आई वुड गेट मतलब अपॉर्चुनिटी कम मिलती थी ना बाल तैयार होने के लिए, क्योंकि वो ज़्यादातर बाल कवर होते थे। तो एक बार ऑब्वियसली मैं बड़े अच्छे से अपडू और बना के गई एंड इट लुक्ड नाइस। तो एक आंटी हैं जिन्होंने मुझे आई थिंक पहली बार या बहुत साल में पहली बार हिजाब के बगैर तैयार देखा, एंड शी लुक्स एट मी एंड शी like is kind of a little taken aback and she's like बहुत अच्छी लग रही हो, and then she kind of doesn't even look at me and kind of mumbles to herself, not mumbles to herself, she clearly wanted me to hear it but like didn't say it to my face and say अब हो जाएगी तुम्हारी, और वो चली गई and I was like फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझसे पूछ ले कि मेरी मुझे करनी है भी है कि नहीं करनी। Secondly, was that supposed to be a compliment when you like clearly told me to my face that up until that point I didn't meet your criteria for desirability. लेकिन अब आंटी that is what you said. अब आंटी ने पास कर दिया, अब तुम्हारी शादी हो जाएगी देखना। और मतलब एक तो आंटी अज्यूम कैसे कर लेती है, सेम आंटी बैठे बैठे वेट ही कर रहे हैं कि शादी कब होएगी हमारी, मतलब हम तो वेट ही कर रहे हैं राफिया यार 25 साल की हो गई कब शादी होएगी मेरी, फिर तो लाइफ खराब हो रही है। मतलब आंटी अज्यूम कर लेती है, नॉट इवन आई वुड ब्लेम इट टू आंटी, आई वुड ब्लेम इट टू ऑल द पीपल व्हेन यू वन एक सर्टेन एज के हो जाते हो ना, मम्मी पापा को देख के तुम्हारे यहाँ वो शादी कब करा रहे हो, तुम्हारे यहाँ वो एज 24-25 होती होगी, मेरे यहाँ वो एज 18-19 होती है। ओके या इट इज दैट बैड व्हिच इज अच्छा सेम आंटी, लेट मी कंप्लीट द स्टोरी। सेम आंटी लाइक 4-5 years लेटर मेरे खुद के भाई के शादी में आई एम ऑल ड्रेस्ड अप एंड एवरी फंक्शन शी टोल्ड मी कि ओह बड़ी अच्छी लग रही हो, ओह बड़ी अच्छी लग रही हो, एंड इन द फाइनल फंक्शन शी लुक्स एट मी एंड सेज इतनी पसंद हो ना मुझे अगर मेरा कोई बेटा होता ना, एंड आई वाज लाइक उनके 3 बेटे हैं आशिमा, उनके 3 बेटे हैं। माय गॉड यार, मतलब आंटी ने सोचा भी नहीं क्या, मतलब शी डिडंट द फिगर्स इन हर हेड। थैंक गॉड उनके बेटों की शादी हो चुकी है, एवर सिंस शी फाउंड मी डिजायरेबल, थैंक गॉड उनके तब तक बेटों की शादी हो चुकी है। उनको बस चले ना सारी सुंदर लड़कियां इकट्ठी करके रख ले, वो उनको शोपीस में लगा लगा के रख ले कि ना सारी सुंदर लड़कियां मेरे खाते में लिखी हुई। अगर मेरा बेटा होता ना तो हाँ मतलब दैट इज सो क्रीपी, दैट इज यू नो अपन मूवीज में देखते हैं, दिस इज वेयर होमोसेक्सुअलिटी कम्स फ्रॉम दिस वन आंटी आइंग सम अदर गर्ल। maybe this is you know they say कि हर किसी के अंदर you know sexuality is fluid और हर किसी के अंदर किसी आंटियों की ऐसे निकलती है, आंटियों की ऐसे निकलती है, जैसे यंग बच्चों को देखती है वो कि काश मेरा बेटा होता। that is so creepy। तो बेटा I mean that is so creepy कि काश तुम्हें मैं उठा के अपने घर में रख सकती to look at you, मतलब you don't even have a I don't know what to say, like why do you want बेटे हैं ना उन लोग के बेटे, वो तो बस एक मीडियम है उनका वो डिजायर एक्सप्रेस करने के लिए बिकॉज उनके दिमाग में मॉरल और एथिकल वैल्यूज था ना कि नहीं ये तो नहीं कर सकते, ये तो जो भी है दिस इज द सिन और नहीं यहाँ तक भी बात नहीं पहुँचती उनके लिए, तो मतलब उनके पास तो इतना एक्सपोजर नहीं है टू अंडरस्टैंड दैट एज अ पॉसिबिलिटी। सो उनकी जो अट्रैक्शन उन्हें पता भी नहीं होगा कि वो अट्रैक्शन क्या है, उन्हें लगता है कि हमें बहुएं बनानी है बस। ये आंटी का नाम जो मेरे को समझ नहीं आया, शी हैज 3 sons ऑलरेडी मैरिड, फिर भी बेटा होता तो मतलब क्या, मतलब उनका ये हॉबी है क्या कि सुंदर लड़कियों को इकट्ठा करके लेके जाना, अपने लड़कों की शादी करा दो। इफ आई वुड हैव बीन उनके बेटे की कोई किसी वाइफ ना, तो मैं तो बैठ के जज कर रही होती आंटी को कि हम तीनों आपको कम पड़ रहे थे दैट यू नीड मोर सुंदर लड़कियां।
भैया और नहीं भाई, जो 3 है वो उनके लिए थोड़ी है, मतलब उनको फिर भी लगता होगा कि ये 3 मेरे लिए। I don't know. अरे उनको भी तो यही पकड़ पकड़ के लेके आई होंगी ना वो। I guess yes. My And I God. know how important beauty plays a role. in her So now I would selection. like Anyways, to talk so about the other aspect of it. जैसे ये तो हो गया Okay, कि okay. आंटियां हैं जो अपने लड़कों के लिए लड़कियां स्काउट कर रही है। So I would like to talk about the other thing now कि जब पेरेंट्स इन जनरल जब अपनी लड़कियों के लिए लड़के ढूंढ रहे होते हैं, तो from what I have seen around me, because I am that age now, people are getting married around me, so I have like friends who are older than me, और फिर मेरे मतलब मेरे बराबर के भी like kids ही बोलूँगी, मुझे तो kids ही लगता है, they are getting married now. So this is one thing I have heard from a lot of boys, especially these boys. I mean मुझे तो बेचारे boys लगते हैं इस केस में वो लोग कि ना उन लोगों से भी ना काफी अनरियलिस्टिक, सो इसके भी दिस इट वर्क्स ऑन द मेटा लेवल। तो उन लोगों के लिए उन लोगों से काफी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है यूजुअली लड़कियों के पेरेंट्स से कि ना अच्छा ऐसे आई हैव फ्रेंड्स जो उनसे क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही पूछते हैं लड़कियों के पेरेंट्स, अच्छा कितना कमा लेते हो एंड वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 10 years। अरे उसको क्या पता 10 साल में क्या होगा, मतलब ठीक है बेचारा ही हैज अ लाइफ ऑफ when you're young. हाँ एंड यू आर यंग, यू आर वर्किंग हार्ड, आप यू हैव अ फ्यूचर फॉर योरसेल्फ। और 10 साल बाद तो कुछ भी हो सकता है ना, क्या पता बेचारा कुछ भी हो जाए, मर जाए, कुछ भी हो सकता है 10 साल बाद। तो किसने देखा है 10 साल बाद क्या होगा? ये बहुत ही अनरियलिस्टिक क्वेश्चन है कि अच्छा वेयर डू यू सी योर्स। अब बेचारा वो जॉब का इंटरव्यू थोड़ा देने गया है, ही इज जस्ट वांटिंग टू गेट मैरिड। हमारा तो लड़कियों के पेरेंट्स की बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे डू नॉट लुक कि अच्छा, I won't generalize कि most of the times, but this is a complaint I've heard from boys कि वो बाकी कुछ नहीं देखते, बाकी सारे फैक्टर्स छोड़ देते कि अच्छा पढ़ाई कितनी करी हुई है, क्या पढ़े हुए हो, ना कमाते कितना हो। So that is, और this is a very I have friends जिनको मुंह पे बोला गया कि नहीं हमारी बेटी को इतने में तो चलेगा नहीं, and they have been rejected. And why do you think that is? Why do you think that is? They have been rejected because of that, and that is because पेरेंट्स while like bringing up their daughters उनको कभी ये बोल के नहीं बड़ा कर रहा है that you can grow up and be independent, because these girls have been brought up with this idea that you are constantly dependent on someone. जब तक आपकी शादी नहीं होती you are dependent on your parents, है ना, और फिर जब आपकी शादी हो जाएगी तो you are dependent on your husband. तो इसलिए उनको अपने like to be son in laws या फिर अपने बेटियों के हस्बैंड से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती है, बिकॉज उनको पता है ना कि वी हैव नॉट बॉटम, हमने उनको ये सोचा तो बड़ा करा है नहीं दैट दे कैन बी फाइनेंशियली और इंडिपेंडेंट इन अदर वेज। तो इसलिए फिर जो सारा जो इनसिक्योरिटी होती है, डर होता है, एवरी पेरेंट इज कंसर्न्ड अबाउट देयर चाइल्ड, नो, तो जो इतनी उनकी कंसर्न्स होती है वो इसलिए इतनी होती है बिकॉज दे नो मे बी शी कैन, आई एम नॉट जनरलाइजिंग है कि नहीं कर सकती लड़कियां, आई एम नॉट, दैट इज नॉट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स लड़कों को कभी ये सोच के बड़ा नहीं किया जाता। It's also not कि वो लड़की, it's also not कि वो लड़की कर सकती है या नहीं कर सकती, because they don't look at their, I'm sorry but parents also don't look at their girls as what they are. They are also complicit in dehumanizing them and seeing कि अच्छा वो एक जो हमारी certain जो मैरिज का उनका जो भी एक एंटिक्वेटेड सा आइडिया है where a girl plays a certain role, क्या वो उस रोल के लिए फिट है, क्या वो खूबसूरत है, क्या उसे घर के काम आते हैं, you know, क्या वो हाँ एंड लाइक वेरी रेडी कि हाँ जाओ अपने घर में रख लो, हाँ वो तो कभी किसी को देखा ही नहीं जाता है, बस इन सब चीजों पर ध्यान दिया। तो ऑब्वियसली नॉट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस लड़कों से कि वो सारे काम वही कर लेगा, प्लीज आप तो नेग्लेक्ट कर दिए सब चीजें। You don't look at these so things. You don't fulfill your duty and then you put the pressure of it on somebody else and you dehumanize and your daughter in the process, क्योंकि let's face it, there is also a reality of men being abusive husbands because they feel कि ओ मुझ पे ये dependent है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप इनोसेंट लड़कों पे बेकार किस्म की एक्स्ट्रा वो डाल रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, you are also creating a perfect person
टू बी अब्यूज्ड। और फिर इसी वजह से आपकी अब्यूज़ की जो डेफिनेशन होती है वो इतनी ही क्रेजी होती है, जो बेसिक लेवल अब्यूज़, बेसिक तो नहीं कह सकते, बहुत सी अब्यूज़ होती है जिसको आप अब्यूज़ ही नहीं मानते कि अच्छा ये तो चलता है, तो लड़के तो गुस्सा होते हैं, तो ये तो होता है, ये वो, बिकॉज आपने अपनी बेटी को इतना डिपेंडेंट बना दिया, उसको आपने इतना मतलब, एंड यू आर complicit also in the society which looks at girls who even want to be independent a certain way, या who looks at unmarried या divorced etc girls in a certain way, इस पूरे सिस्टम में आप complicit होते हैं। तो you know कि जो उस शोहर को छोड़ने की कॉस्ट है वो आपने खुद ही इतनी ज़्यादा कर दी है, in the way you raise her and in the way you look at other girls and other women and this hostile environment you create for her, that you can't imagine, मतलब आपको ये कबूल हो जाता है कि फिर बेटी जो है आपकी अब्यूज़ ले ले, क्योंकि आप तो खुद ही उसे, इंसान तो आप खुद भी किसी लेवल पे उसे समझते ही नहीं है, ठीक है, ट्रू, आपको ये कि वो सर्टेन लेवल ऑफ अब्यूज़ कि अच्छा ये भी कोई चीज़ हुई, rather than you know her being single or पता है मैंने कितनी बार देखा, मैंने ये पैटर्न भी देखा जब when these parents are scouting boys नो, पता है वो खुद ही एक जब उनके काफी सारे फिल्टरिंग प्रोसेस होते हैं, तो स्टार्टिंग के 2-3 फिल्टरिंग प्रोसेस होते हैं उसमें तो लड़के इन्वॉल्व ही नहीं, तो लड़के को पता ही नहीं होता कि ना ऐसा ऐसा लड़का देखा है। अभी थोड़े दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू अ फ्रेंड, बोलते मैं उसके तो ना ये एप्स होते हैं ना शादी.com वगैरह ये सब है ना, तो वो पेरेंट्स ही चला रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग की कॉन्वर्सेशन भी पेरेंट्स कर रहे होते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग टू द गर्ल, यू आर टॉकिंग टू द पेरेंट्स, और फिर वो गोस्ट कर देते हैं आपको, अगर उनको नहीं जमेगा ना वो गोस्ट कर देते हैं बिना जवाब दिए। तो वो बेचारे आई वाज टॉकिंग टू बॉयज, दिस पुअर गाइज, दे वर वेटिंग, और बेचारे गोस्ट हुए पड़े थे। मतलब कितना किसी के लिए खराब हो सकता है कि आप किसी शादी.com से साइट पे गोस्ट हो गए, और लड़की से नहीं, लड़के के पेरेंट्स से, और उसको पता भी नहीं होगा ना, मतलब ये तो आप बाद में तुक्का मारते हैं कि लड़की के पेरेंट्स होंगे। नहीं पता होता है कि लड़की के पेरेंट्स से बात करें, दे से कि हम पेरेंट्स, हाँ उन्होंने उनके उस पे बिहास बना रखी होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, प्रोफाइल, एंड यूर टॉकिंग, तो आप पहले वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस पास करो, फिर जाके आपको जैकपॉट छुपा के रख रखा है हमने, पहले हमारा जो टेस्ट है आप वो पार करो, फिर हम आपको लड़की से मिलने देंगे। ऐसा होता है बहुत केसेस में, ऐसा which is so dehumanizing for the girl also. अब देखो अब times are changing, okay, times are changing, okay, so like I have seen like decent marriages also around me, so times are changing, but लेकिन time is changing, but साथ में किसी पैरेलल दुनिया में ये सब चीजें भी चलती है, ये सब चीजें भी चलती है, और ये इतनी एक्सेप्टेड है। पैरेलल नहीं है, मेरे से काश मुझसे थोड़ा पैरेलल होता, मुझे लगता है मैं तो उसी लाइन पे हूँ, और जो तुम सिस्टम बता रही हो वो मेरे पैरेलल चलता है। बहुत छोटा सा है वो, मैं तुम्हें उस सिस्टम से उठा के बताया दूंगी यार। आई थिंक स्टिल लाइक एटलीस्ट मेरे अराउंड और यहाँ पर तो मैंने देखा है दैट स्टिल जो लोग भी होते हैं ना, मतलब हमारे एज के कुछ लोग भी होते हैं ना, उनको भी पता नहीं क्या उनका ट्विस्टेड आइडिया ऑफ मैरिज बन गया because of this रिश्ता कल्चर। I was on a yes, I have seen there was a Facebook group जिस पे मुझे किसी ने डाल दिया था, और वो कुछ रिश्तों का ग्रुप था, ठीक है ना, where people would post their own profiles, and I swear to God most of those profiles whether they were by girls or they were by boys, उसका first line होता था on behalf of my parents। कैसे रिश्ता तुम्हारा खुद को करनी है क्या? रिश्ता तुम्हारा है, तुम्हें शादी करनी है, योर पेरेंट्स कैन पोस्ट अ प्रोफाइल ऑन बिहाफ ऑफ यू, हाउ आर यू ऑल सेइंग दैट यू आर पोस्टिंग योर ओन प्रोफाइल ऑन बिहाफ ऑफ योर पेरेंट्स? क्या अंडरस्टैंडिंग है भाई, सारी लैंग्वेज को शादी करने की, किसको शादी करनी, हो डू यू वांट टू टॉक अबाउट दैट थिंग, शुड आई आस्क? ओके, लैंग्वेज ना, द लैंग्वेज आल्सो इज वेरी ट्विस्टेड इन दिस होल प्रोसेस। मेरे अराउंड द लैंग्वेजेस लड़की देखने जा रहे हैं, इंसानों को देखने नहीं जाते, चीजें देखने जाते हैं। लड़की देखने जा रहे हैं, लड़की इसके यहाँ दी हुई है, लड़की उसने ली हुई है, लड़की का हाथ मांगने जा रहे हैं। दिस इज ऑल दिस द होल आइडिया इज, एंड व्हेन यू ट्राई टू अनब्रेक दिस लैंग्वेज यू गेट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कि भाई हम नहीं देखते अपनी लड़कियों को इस तरह, लेकिन यू डू, चाहे अब वो जो है आप सब कॉन्शियस लेवल पे कर रहे हो, बट फॉर यू व्हेन अ गर्ल इज गेटिंग मैरिड उसकी ओनरशिप ट्रांसफर हुई रही है, वरना आपकी लैंग्वेज में ये क्यों होता कि हम लड़की दे रहे हैं या हम लड़की ले रहे हैं? क्योंकि इंसान तो दिए लिए नहीं जाते, चीजें दी ली जाती हैं।
True. So you are ये language तो मैंने भी treating सुनी your है. I've daughters seen in a that horrible language way. around me. Yeah. एंड मेरे यहाँ तो लड़कियाँ देखने का सिस्टम इतना खतरनाक है आशिमा, बिकॉज यू सी विद इन कम्युनिटीज, तो इवन किसी को मना करना इज लाइक कि ओ भाई फिर कम्युनिटी में ये होगा ना कि उनके तो नखरे हैं और ये तो आने नहीं दे रहे और ये तो अपनी लड़की देखने भी नहीं देते वगैरह, ठीक है. और पेरेंट्स तो आपको पता है इसी प्रेशर में कॉन्स्टेंटली चल रहे होते हैं कि ऐसे चलते फिरते देख के आ जाओ. और फिर पेरेंट्स भी इसी उसमें होते हैं ना, क्योंकि उनकी तो कम्युनिटी की सारी वही होती है कि लोग हमारे बारे में क्या कहेंगे, राइट. तो देयर आइडिया कि भाई हम इसको कैसे मना करें, नहीं देखने तो आने देना चाहिए. अब थोड़ा सिस्टम हुआ है कि आप थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं लड़के की बिफोर यू लेट समबडी कम, वरना पहले तो लोग इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते थे जस्ट बाय रेप्यूटेशन कि भाई ओ ये इस फलां का जानने वाला है, वो फलां का जानने वाला है. द एक्चुअल बॉय जिसके लिए देखने आ रहे वुड बी अननोन एंड पीपल वुड बी ओके विद नॉट टेकिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट देम. अब थोड़ा हुआ है कि एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, और हमारे यहाँ ज़्यादातर आंटियाँ देखने आती हैं, ठीक है. और आई स्वेयर टू गॉड कि एक एक दिन में वो आंटियाँ 2-2, 3-3 लड़कियाँ देखती हैं. इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग टू मीट विंडो शॉपिंग वाली बात हो गई. ऑल्सो एंड यू डू नॉट ओ एनी आंसर्स टू देयर फैमिली. आपका दिल चाहे तो उसके बाद रिश्ता भेजें, आपका ना दिल चाहे तो ना भेजें. आई नो ये मेरी कम्युनिटी में होता है. आई नो देयर आर अदर पीपल अराउंड मी, लाइक आई हैड अ फ्रेंड हु टोल्ड मी लाइक when somebody comes to meet you, isn't there like a conversation post that कि ओ ये है या वो है, या कोई बहाना बना के कोई मना कर देता है. हमारे यहाँ तो मेरी कम्युनिटी में you owe no answer as a boy. एंड मेरी कम्युनिटी में कि ये जो तुम बोल रही हो ना कि लड़कों से ये एक्सपेक्टेशन होती हैं, वो होती हैं फाइनेंशियल, ये होने लगा है अब, ठीक है, और होता है. लेकिन ऑल्सो हमारे यहाँ ना लड़कियों के रिश्ते जा ही नहीं सकते. लड़की वाले खुद से इनिशिएटिव ले ही नहीं सकते. अगर लड़की का रिश्ता आया तो दे सकते हो, वरना यू कैन नॉट टेक एन इनिशिएटिव एंड फाइंड अ प्रपोजल फॉर योर. तभी इसलिए फिर पेरेंट्स जल्दी करते रहते हैं कि पता नहीं बाद में इसलिए जल्दी कर देते हैं. एग्जैक्टली. तो 19 साल की थोड़े दिन पहले किसी 17 की भी नहीं है वो पूरी, उसकी एंगेजमेंट हुई है. दिस इज हाउ फक्ड अप दिस इज. आई एम सॉरी आंटी, लेकिन है ना फक्ड अप तो बोलूंगी ना फक्ड अप. चाइल्ड मैरिज है ये तो. हाँ एंगेजमेंट हुई है, लेकिन हाँ इट इज़ क्रेजी. एंगेजमेंट हुई है, शादी नहीं हुई. तो अब क्योंकि पाकिस्तान के इतने रिस्ट्रिक्टिव लॉज आ गए हैं कि 18 साल का वेट करना पड़ता है. आई स्वेयर लिटरली दिस हाइपर रिलीजियस पर्सन सेड दिस इन फ्रंट ऑफ मी कि ओ इसका रिलीजन से तो कोई लेना देना है नहीं, और ये 18 साल का रूल लगा दिया इन लोगों ने. एंड आई वाज लाइक प्लीज व्हाई डू आई लिव हियर. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम आई हैव स्पेंट आस्किंग गॉड दिस, why do I live here? But like, why here of all places? I mean, yeah, I understand your question. I understand where it is coming from. This question, that's fucked up, man. I don't know why Allah Mia thinks कि मेरे अंदर इतनी resilience और ये है कि मैं ऐसी जगह survive कर सकती हूँ. He थोड़ा ज़्यादा expectations हो गए. Allah Mia too much pressure हो गए. I cannot survive. यार 17 साल यार 17 साल. Like, how are you choosing your part? You are barely you are not choosing. Your parents are choosing. Exactly. 17-year-olds fuck up when choosing their majors. How do you even know if it's a yes or a no? मतलब जिससे करनी है वो तो दूर की बात है. वो तो नहीं करनी. वो तो तुम भूल जाओ. उस दिन ना मैं और दीदी जोक कर रहे थे ना, अभी दीदू घर पे, now she is living back घर पे ना, so ना they were so should I say that मेरी बहन मुझे मारे. I played no role in this. I don't know what she is trying to say. So, okay, but ना सबको परेशान करते रहते कि अरे खुशखबरी. तो she is old enough to give a खुशखबरी, but she is not old enough कि रात में 9 बजे वो गाड़ी लेके चले जाए बेचारी. तुम इतनी बड़ी हो कि तुम्हारी शादी हो सकती है, and then you can start a family of your own. You are grown up to do that, but no, you are not a grown up when it comes to going out alone. ठीक है, I understand कि चलो ठीक है, रात में safety concerns होते हैं. We come from a place that we have to be careful about that. But this is just one example. But these are not just concerns. There are a lot of other things also. कि जब वो parents ना अपना वो balance बिठा लेते हैं कि तुम इस चीज के लिए ओल्ड हो, इस चीजों के लिए यू आर लाइक यू कैन डू इट ऑन योर ओन, बट इन चीजों के लिए नहीं, यू आर नॉट ओल्ड इनफ फॉर दैट. यू आर 20,
यू आर 20 जब मैं स्टार्टिंग में okay, I moved out of home तो वो अलग था, but लेकिन you are 20, you cannot have sleepovers. You are 20, you cannot have road trips. You are 20, you I know cannot 28-year-olds. I know 28-year-olds who are not allowed to sleep over at their friend's house. But they can sleep with a guy they are married to. वो उसके लिए तो वो 18 से रेडी हैं. एक स्ट्रेंजर के साथ स्लीप ओवर परमानेंट, एक स्ट्रेंजर के साथ परपेचुअल स्लीप ओवर करने के लिए वो 18 साल की उम्र से रेडी है, लेकिन 28 साल की उम्र में वो अपनी दोस्त से जिसको वो बचपन से जानती होगी उसके साथ स्लीप ओवर करने के लिए. And they're also hoping for these sleepovers to manifest into something, like manifest like a whole fucking human being. They're secretly hoping. They are secretly hoping about that also. God, that is but so creepy. No, that is the truth. ऐसा ही होता है. They are secretly hoping these sleepovers to manifest into something tangible. तभी तो उनकी शादी में थप्पा लगेगा. They need like a tangible now that you result. talk about it, this very accepted culture that we live in and which is around us all the time, it is so creepy. ये तो मुझे बहुत, मैं तो इतना हंसती हूँ ना, दिस ये मेरा coping mechanism है शायद हंसना, but this is so funny that you are old enough to do things. I'm sure it's very I'm sure हम सबके अंदर ये trauma बहुत है of being dehumanized, of not, I think मेरे अंदर तो बहुत ही, of not, हमारी existence not being validated because we just exist as objects जिनको या तो स्लीप ओवर नहीं जाने देना क्योंकि उनको उनकी फलां रेपुटेशन बतानी है, या उनको इतने बजे नहीं बाहर जाने देना क्योंकि उनकी ये रेपुटेशन वो करनी, you know, there's a lot of also this goes on a deeper level, and I don't know, there's a lot of rape anxiety also associated. Now I'm not saying the fact that in living in a patriarchal society this is not and a society which is so dangerous for women, that this is not a reality, but a part of this anxiety I feel is that कुछ हो जाएगा. You know, it's not just wanting to protect your daughter from a horrible traumatic experience, it is also protecting her her reputation. Okay, it is also protecting, you know, the persona and the object you've created, because unless you get her married, like that object's उसका जो पर्पस है वो फुलफिल नहीं हुआ, एंड यू हैव फेल्ड एज अ पेरेंट इन, बिकॉज यू नो वो ऑब्जेक्ट आपकी जिम्मेदारी है, आपकी चीज़ है, और आपने सेफली उसे दूसरे प्रोप्राइटर पे ट्रांसफर करना है. दिस इज यू नो इट्स बिकम बेटर. ऐसी होती है ना. या आई स्वेयर, एक स्वेयर, या आई मीन दैट इज सो. और इवन दो आई फील कि ओवर टाइम थोड़ा सा ये सारे फेस खुद के दिमाग में बैठे हुए हैं. हाँ, मतलब आप मतलब कहीं ना कहीं वो निकलते हैं so deep rooted. हाँ, जैसे अगर चलो इफ then okay, this is one example. when we were living here, जब अपन सब साथ में मलेशिया में थे, तो कहने को we didn't have like parents to police us. We didn't have parents to police us. बट लेकिन अपन भी कुछ ध्यान रखते थे ना कि ओके इट जस्ट इतना लेट है तो अपन रात में नहीं जाते हैं, थोड़ा डिले कर देंगे. तो ये सब अपन खुद से ध्यान रखते हैं ना. I think yeah, but part of it, it's very difficult to put that in this category because a lot of it is about safety, and women's safety मैं वही तो बता रही हूँ, is a reality. लेकिन that is true, but some like a lot of times we are like very overtly safe also. इतना fear है अपने दिमाग because ये आपके अंदर anxiety generational तौर पे transfer कर दी जाती है. Why is this happening? True. और कितनी जल्दी ट्रिगर होती है. जैसे for me, मेरी बहुत anxiety बहुत जल्दी ट्रिगर करती है. जैसे randomly मैं अकेली जा रही हूँ alone में, और it's not even like रात हो रही है, it's just like चलो शाम के 6 बज रहे हैं, मैं जा रही हूँ, and I know. जैसे ना अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ था, मैं बुकित बिंतांग गई थी, शाम थी, वीकेंड का टाइम था, शाम थी, बट बुकित बिंतांग का एक एरिया है ना, व्हेन यू गो टू पेट्रोनस स्टार से पतली सी एक गली होके जाती है. दिस पतली सी गली ना इज द बिहाइंड ऑफ अ लॉट ऑफ दीज फूड स्टॉल्स. ओके, तो छोटी सी पतली सी गली है. वो शाम को 6 बजे थे और मैं वहां से अकेली जा रही थी, बट आई वॉज सो एंग्शियस. और मैं जाते थे सोची थी कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मेरे को 10 मिनट एक्स्ट्रा चलना पड़ता तो मैं बड़े वाले रास्ते से चली जाती ना. व्हाई एम आई पुटिंग माई सेल्फ इन दिस पोजिशन, व्हाई एम लाइक. और मुझे इतनी एंग्जाइटी जब तक मैंने वो पूरा रोड क्लियर नहीं कर लिया. कुछ नहीं था, इट वॉज जस्ट 6, बट मेरे दिमाग में इतना डर था कि मैं खुद ही उस चीज को ना यू थिंक सो मच अबाउट इट.
आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग, दिस इज आवर रियलिटी, मतलब ये अपनी रियलिटी है दैट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, एंड केयरफुल नहीं होते तो कई बार वी हैव टू गो थ्रू शिट आल्सो. हाँ, but it is so taxing, it is so emotionally and mentally taxing कि आप पूरा टाइम अपने आप को इतना वो रखो, अवेयर रखो, और ज़्यादा एकदम कि ओ ये करो वो करो, ऐसे मत करो वैसे मत करो. दिस इज वेरी टैक्सिंग. तो पेरेंट्स की तो है ही, बट अपने लिए भी है. एंड व्हेन यू ब्रेक इट डाउन, इट कम्स डाउन टू रेपुटेशन ऑल्सो ना, कि जो ट्रॉमा होगा इंसिडेंट का वो तो होगा ही, एज यू सेड बिफोर. जो इंसिडेंट का ट्रॉमा होगा वो तो होगा ही, बट लेकिन दिस इज सो इट कम्स डाउन टू रेपुटेशन ना फिर. That is true. Yeah. Heavy, yeah, heavy. Yeah. Okay. Okay. Did you have any other point to make? Do you think there is also I mean I know कि women and their objectification वो तो सारी मतलब east west north south हर जगह this is a thing, लेकिन रिश्ता culture में specifically जिस तरीके से होती है, do you think that has also has a connection with the way we view marriage, or the way we you know, our idea of marriage in a very conservative desi idea of marriage? तुम चली गई. I'm coming. Sorry, you talk. I'm coming. See, I'm here. Something is wrong with my phone today. It keeps falling. You talk. Yeah, marriage of, when it comes down to this idea of marriage na, I have seen like a difference. Difference in the idea of marriage we have and the idea of marriage our parents have. It is very 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 different. Very different. मतलब if I talk about my parents, I mean they, मतलब मेरी मम्मी का तो your parents generation बेचारों को ना direct line of fire पे मत डालो, मतलब it's that generation. नहीं I had a good thing to say also. I was talking about my personal experience. जैसे मेरी मम्मी का क्या होता है, तो अब जैसे मैं अपना केस देखूँ ना, तो मेरे पास दोनों जनरेशन के कपल्स हैं, ठीक है. I have somebody from my parents generation, I have some like मेरी जनरेशन से दी हूँ, ठीक है. तो I can see a lot of difference in the kind of marriages they have, ठीक है. Very different, and obviously you know the kind of marriage I approve with. वो obviously I approve with the kind of marriage my sister has, ठीक है. तो जैसे मैं कभी मैं मम्मी और दीदी बैठ के हम लोग बातें कर रहे होते हैं ना, तो मम्मी का आउटलुक ऐसा होता है कि चलो ठीक है, तुम्हारी जनरेशन है तो इट इज़ गुड फॉर यू दैट यू आर डूइंग इट, बट लेकिन हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, ठीक है. अब चीज़ें चेंज हो रही है, एंड गुड फॉर यू दैट थिंग्स आर चेंजिंग, एंड देन यू हैव लाइक व्हाट वी वांट अ इक्वल मैरिज. बट हमारे टाइम पे ऐसा नहीं होता था, एंड आई एम हैप्पी विद व्हाट आई हैव. ठीक है, ओके, समझ गई. सो दिस इज द आइडिया ऑफ like there's a major difference in the idea of marriage our parents had and we had. तो कई बार जैसे this is just I'm talking about my mother, but लेकिन I get it why their generation cannot understand कि why do we have this kind of like why do we have this kind of idea, because जमीन आसमान का फर्क है, because वो उनके lived. क्या है, क्यों कर रहे हो मेरे साथ? कहाँ चली गई थी? सॉरी यार, सम इश्यूज टेक्निकल. हाँ, तो बोलो. तो मैं क्या बोल रही थी? हाँ, तो दे एक्नॉलेज द डिफरेंस, बट दे कैन नॉट सी देमसेल्व्स लिविंग द डिफरेंस नाउ, बिकॉज फॉर देम इट्स लाइक हमारे तो ऐसा ही होता था, एंड दे आर ऑल्सो हैप्पी इन द सिस्टम. ओके, दे आर होपिंग फॉर अ गुड सिस्टम फॉर अस, एंड दे try to understand it also for us, but they cannot put themselves in the same difference. They cannot. Okay, that makes sense. They cannot. Okay. But I don't think, but there's a large chunk of parents who are also not like that, who understand their idea of marriage and वगैरह, and they think, I think not everybody is able to digest the change that has happened. And to be honest, I see a lot of young, I'm sure you also know a lot of young people also who have bought
the old idea of marriage where a woman has a specific role and a man has a specific role. ठीक है, और मुझे लगता है कि मतलब चेंज हो रहा है और आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन तो कल्चर को तो चेंज होने में कितना टाइम लगता है. तो जो रिश्ता कल्चर है और जो मैरिज का व्यू है, दे डू टाई इन टुगेदर, बिकॉज वेदर एक तो चीज़ ये होती है, लाइक आई हैव सीन पीपल सेंड मैरिज प्रपोजल्स एट द मोस्ट अनसूटेबल प्लेसेस. एंड बाय अनसूटेबल आई डोंट मीन कि लड़की अच्छी है या लड़का अच्छा है, थिंग लाइक दैट, ठीक है ना. इट्स जस्ट दैट they look at a girl, they like the way she looks and they want her in her home without realizing what kind of value system she brings, ठीक है ना. Because the idea is always कि ओ ये इसने हमारे घर आना है, हमारे बेटे ने तो इसके घर नहीं जाना, ठीक है. तो then she will adjust accordingly. वो हमारे तो हाँ, जो ये प्रिविलेज या एंटाइटलमेंट के भाई जो भी सोचती हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, या मतलब उनके दिमाग में ये एंजाइटी, ये टेंशन, व्हेन वी थिंक अबाउट मैरिज इतनी सारी चीज़ें दिमाग से गुजरती है ना कि भाई कौन लोग होंगे, कैसे होंगे, क्या होगा, वेदर आपका जो भी वैल्यू सिस्टम हो, कंजर्वेटिव से कंजर्वेटिव लड़की और लिबरल से लिबरल लड़की हु हैज़ अ डिफरेंट आउटलुक ऑन मैरिज, whatever your outlook on marriage is, a girl will have a lot of anxieties when thinking about getting married. Boys I'm not saying that they don't have anxieties, लेकिन a lot of times boys have the power, और या उनके पेरेंट्स at least have the power within the system. You know that there is a power imbalance between girls' parents and boys' parents, ठीक है. They have the power within the system to kind of bring about change or to request change or to slightly nudge it in that change कि भाई where they try to understand what kind of girl there is, or to give some kind of importance to the values she brings, to understand whether or not she will adjust. And I'm not saying, I know that there are certain people who do think about these things, ठीक है, but I don't know what's wrong, it's just falling. Do think about these things, but there's also a large chunk of society which does not, और उनके अंदर ये anxiety भी नहीं होती कि oh shit कि हम किस बेसिस पे किसको हमने रिश्ता भेज दिया, what if they say yes, we don't know anything about this person. They don't have that anxiety because they have this entitlement, जो उनकी एक generational entitlement चल रही है, चाहे दुनिया कि एक भाई लड़की है तो वो तो उसको एज अ ह्यूमन देखते ही नहीं है, तो वो एक सर्टन टाइप की होगी, ठीक है. और भी इन केस हो ही तो मतलब उसका बर्डन है एडजस्ट होना, वरना वो बुरी हुई, हम तो नहीं है, ठीक है. तो उनका आइडिया ऑफ मैरिज एक इस तरीके से वेयर द बॉय इज द प्राइज एंड द गर्ल हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ऑल द इमोशनल लेबर, and B, the girl will have this specific job where the house is a responsibility and the kids are her responsibility, and all kind of emotional labor is a responsibility, but also tum karti kya ho, and that is not good enough work, because look at the price who will earn money for you. And now even when you are allowed to work, that has to be secondary, okay, and the man is the earner of the house, ठीक है. तो ये जो आइडिया है मैरिज का, ऑब्वियसली दैट टाइज इन विद रिश्ता कल्चर, कि भाई खूबसूरत से खूबसूरत लड़की ला के रख दो ताकि हमारा जो ये बेटा है जो कमा के ला रहा है, ओ वाओ, उसकी जो भी डिज़ायर्स हैं, इट इज़ सच अ डिस्गस्टिंग सिस्टम. आई एम सॉरी, समटाइम्स आई फील लाइक, शुड आई से इट, समटाइम्स आई फील like girls are being pimped out. They are being pimped out because the person who is looking at them cannot see them as more than objects. और चाहे जितना भी टैबू कर लो आप टॉपिक को हमारे यहाँ सेक्स का, when you objectify a person and when you choose it on this basis, this is all you're looking at. You're looking at desirability. You're looking at sexual appeal. I'm sorry, लोगों को offend करेगा because oh my god, but this is what your actions do. You might be afraid of the words, but this is what the actions do. ठीक है, this is what your actions point at. तो रिश्ता कल्चर में where you're objectified, and वो is ties into the idea of marriage, where your job in a marriage is to appease your husband, is to bear his children, and you know do all kinds of work with related to those children, और थप्पा आखिर में उसका लग जाएगा और वो उसकी जनरेशन कैरी ऑन हो रही है and all that bullshit. ठीक है. True. So yeah, I think that things the are two changing, tie but in very together slow. this way. Very slow. I know things like were changing, but very slow. Like as you said before, culture changing. What time? Then this is part of a culture. This is part of desi cultures in a lot of communities. So I understand. But I would like to give credit to millennials, since I am one also, because I do feel कि जितना पिछले 10 साल में change हुआ है, उतना उससे
पिछले पहले 50 नहीं साल में हुआ था। नहीं चेंज True, हुआ, true. ठीक I है? think, तो या kind थिंग्स आर of- चेंजिंग। Yeah, कि I think people can the supposed to be married couple, they have that space आजकल to talk out. तो भले ही माँ बाप की अलग अलग expectations हो, but at least the people who are getting married, they get that space. जैसे हाँ, sometimes from you what I have that seen space to around figure us. it out. Yeah, so what I have seen around us and like my place, people do get that space to talk about. तो ठीक है, हो सकता है कि मम्मी पापा के expectations हो, but they sometimes talk it out and they come on the same page, which I feel makes it easier for the girl. है ना? Which sometimes makes it because लड़कों की इसमें ज़्यादा responsibility होती है. I mean, this is a hard fact that we have to digest कि if we want to bring about a change, इसमें भी boys have a bigger role to play than us. Yes, because they have have- power. They have power, I mean, they I have the think- agency. So we have to rely on them sometimes to bring about that change, which is something which I don't mind. Because if it हाँ. turns out to be good, I think- I don't mind. I think doing हम that. गाइड कर देंगे, लेकिन प्लीज उनको आगे से मेहनत करने दो. They owe us. Yeah, They owe because- the society this. Yeah, because हाँ, बोलो. एक होता है ना कि एक लड़के का वोकल होना और एक लड़की का वोकल होना, these are two different things altogether. जितना इम्पैक्ट एक लड़के की वोकल होने से पड़ेगा, like when he will speak out the concerns, उनका ज़्यादा वेट होएगा. तो दिस इज अ हार्श रियलिटी दैट मुझे बहुत अटक. बट एक और हार्श रियलिटी ये भी है. I hate that. this. हाँ, but the thing is ना आशिमा, when they can do it easier, but the thing is at the end of the day They हमारी don't. responsibility है, हमें ही करना पड़ेगा, because they benefit from this system and there is only a certain extent they don't have an incentive to take the kind of risks and or to push the kind to give that push that needs to be given, you know, True. because उनके लिए it benefits them, but compare and I think we will do it. But I'm just trying to make a point here that things are changing in this generation at least. हाँ. The guys we But I have think in our change तो हम ही generation लाएंगे और बेटा. पहले के टाइम पे, like look at what our parents, like our papas हाँ, were. change तो है. It is very different. It is very different. तो change तो है. There is so hope. I will just there is hope. तो I will give them credit where it's due. कि ठीक है. They और I have come across people who understand their responsibility in that. मुझे बहुत खतरनाक, I hate this fact कि मतलब कि something I am so passionate about, इसके लिए मुझे किसी male, I have to rely on the male gender to be able to do that better. But this is something I don't mind doing because in the end फायदा तो अपना ही हो रहा है ना. तो I just want to I think say I kind of disagree with you there a little bit. I think it is true that males have more power, and when they will want change, it will come about faster. ठीक है? Yeah. But that is not just true for Rishta culture. That is true for all kinds of all the things, definitely issues with that gender. all I'm the just oppression saying, women हाँ. face. But हाँ. at the same time, I feel while there is hope in younger men, at the same time I feel like they are also kind of a source of oppression. Whether they are doing it, even if they're not doing it deliberately, the way they kind of I think make sure that the system goes on just by acquiescing in it, not approving it, like acquiescing in it, they make sure the system goes on. I don't think that at the end of the day, this is where the change is going to come from. And I don't think they are the reason for the change. जो वो change भी हुए हैं, it is because of the push of people, of women, of gender non-conforming people, जो भी ठीक है ना, of non-males who have given the push. I think it is because of them. And मर्दों में भी जो change आएगा वो आएगा at the end of the day. अगर वो लाएंगे भी ना जो change, उसके push के पीछे भी हम होंगे, feminists होंगे, या people even if they don't identify as I don't know. feminists, I they mean, just question. it can be both People the who things. question it can this. be both the things. It can be both the things. Well, I agree what you are trying to say. I understand. But I think it can be both the things simultaneously. So yeah, maybe what you're trying to say is मैं मेरे ख्याल से बहुत मैक्रो लेवल पे बात कर रही हूँ और तुम एक पर्टिकुलर माइक्रो लेवल पे बात कर रही हो. तो माइक्रो लेवल पे इंडिविजुअली, फॉर एग्जांपल वेयर अ सर्टेन मैरिज और वेयर अ सर्टेन कपल इज कंसर्न, जब वो एक सर्टेन फैमिली सिचुएशन में है, तो यूर राइट, वेयर द बॉय इज गोइंग टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, द गर्ल हिज वाइफ इज गोइंग टू गेट द बेनिफिट ऑफ इट, और शायद उसे आगे से लड़ना पड़े. ठीक है, उसमें ठीक है, दैट इज सो या माइक्रो लेवल पे आई एग्री.
macro level पे I already Yeah. explained what I think. So Yeah. I think we've had a good enough discussion till now. और अब yeah. मेरा हाथ भी दर्द हो गया है क्योंकि मैं खुद से कैमरा पकड़ी हूँ, वरना तो वो गिर रहा है. एपिसोड में 10 बार वो गिर चुका है. And it's already 10:24. Okay, Ashima has very important things to do, like ogling at F1 racers. Oh, that is such a shitty I thing to say. don't ogle at racers. That is such a shitty thing to say. That's That like I saying that don't- women only watch sports. Women I only don't watch sports to ogle at men. मैं No, जानती I stand corrected. I'm sorry. I'm sorry. I did a very. I'm just excited because बहुत 3 महीने बाद like the season is on. Cyrus मुझे सोचते मैं वहीं बैठ के मैं ही गाड़ी चला रही हूँ. Yeah, I'm sorry. I take back what I said. I fed into stereotypes, which was not my intention. ये मैं एपिसोड के बाद करूँगी क्योंकि मुझे असलियत पता है. कितनी बदतमीज हो यार. Okay, we had a lot of fun. Ashima, Okay. close the episode. Close the episode हो गया. तुम्हारा हर बार का ये. हर बार मैं Bye guys. Tell us नहीं in wait the comments. tell us in the comments. हाँ. Yes, tell us in the comments what do you feel about this Desi Rishta culture, and we would like I'm to know your sure personal you have stories. anecdotes. Exactly. I yeah, want we would like to stories. know personal anecdotes. वो नहीं अभी ना I was following this. खैर छोड़ो फालतू बात बड़ी हो जाएगी. So yeah. Let's Leave comments, Yeah. and most important thing, like, share, subscribe. bye. Bye.